भिक्षा के लिए घर पर गए तो हमारे माता पिता रोते रह गए, कहने लगे अरे तुमको क्या दुखता जो हमें छोड़ के चले गए। तो मेरी माँ आके अंदर से पता है क्या बोली, अरे हमारी तो 21 पीढ़ियां तर गई, क्या बात करते हो तुम, मुझे कमजोर करना चाहते हो, मैं तो वो झांसी वाली रानी का बच्चा हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। बड़ी वो प्रसाद है तेरे लिए। तो ये इसका क्या है, इसका भी मैं बता देता हूँ। जो शंकर जी ने पार्वती के लिए वो सोने की लंका बनाई। तो મિત્રો આપણે પહોંચી ગયા છે ઝીણા બાવાની મઢી તરફ, માળવેલાની જગ્યા જે કહેવાય છે એ અહીંયાથી આગળ આવેલી છે અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ઝીણા બાવાની મઢી તમારી સામે છે। તો આપણે અંદર જઈએ અને ઝીણા બાવાની મઢીના દર્શન કરીએ। તો મિત્રો આશ્રમની અંદર આવતા પહેલા સર્વપ્રથમ શ્રી ગુરુદત્ત ભગવાનનું મંદિર આવેલું છે, તેમના પણ હું તમને દર્શન કરાવું। અહીંયા તમે ગુરુદત્ત મહારાજના દર્શન કરી શકો છો। જે ઝીણા બાવા મંદિર છે, જે આશ્રમ છે તેમની અંદર તેમનું મંદિર આવેલું છે। ગુરુદત્ત ભગવાનના મંદિરની બાજુમાં જ શ્રી સંત શ્રી શિરોમણીજી ઝીણા બાવા છે તેમની સમાધિ આવેલી છે અને ઝીણા બાવાના સમાધિની બાજુમાં જ કામાખ્યા માતાજી જે પુરી મહારાજ એટલે કે સંત શ્રી નાગા બાવાના જે કુળદેવી છે તેમનું અહીંયા સમાધિ સ્થાન છે એટલે કે મંદિર આવેલું છે કામાખ્યા માતાજીનું। તો મિત્રો તમે મહાદેવના દર્શન કરી શકો છો, ભગવાન શ્રી ભોળાનાથના। હર હર મહાદેવ। તો મિત્રો આપણે ઝીણા બાવાની સમાધિ અને કામાખ્યા માતાજી અને જે મહાદેવનું અહીંયા મંદિર આવેલું છે તેમના દર્શન કરી લીધા। હવે આપણે જે ઝીણા બાવાનો જે ચેતન ધૂણો આવેલો છે તેના દર્શન કરીએ, જ્યાં ઝીણા બાવા તપ કરતા હતા। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે ઝીણા બાવા હતા એમનો અહીંયા ચેતન ધૂણો આવેલો છે અને અહીંયા તેમનું સ્થાન જે ગ્રહણ કરતા તે સ્થાન અહીંયા આવેલું છે। તો મિત્રો તેમના દર્શન હું તમને કરાવું। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે જે ઝીણા બાવા હતા એમનો ચેતન ધૂણો અહીંયા આવેલો છે, જે હજી પણ ચેતન છે, તે અમે તેના દર્શન કરી શકો છો અહીંયા। અને અહીંયા જે તમને આ સ્થાન જોવામાં આવે છે તે સ્થાનમાં જે ઝીણા બાવા અહીંયા બેસતા હતા અને એવું પણ માનવામાં આવે છે કે અહીંયા દત્ત ભગવાન પણ તેમની સાથે અહીંયા બેસતા હતા। તો તમે એના અલૌકિક દર્શન કરી શકો છો। આ ઝીણા બાપાની ચલણ છે, બરાબર છે। અને આ જંગલ હતું હાવ પહેલાં, જ્યારે ઝીણા બાપાનો વાસ થયો ત્યારે સાધુ સંત બહુ ઓછા આવતા હતા। ત્યારે 4 સાધુ ભેગા હતા, એમાં એક દત્તાત્રેય ભગવાનનો અવતાર ધરીને આવ્યા હતા એ। ત્યારે ઝીણા બાપા અને આ ચલમો પીતા હતા એટલે દત્તાત્રેય ભગવાને બાપુની પરીક્ષા કરી કે આ ભાઈ ઝીણા બાપા તમે કેવી રીતે, પણ નામ તમારું ઝીણો છે અને શરીર મોટું છે। એટલે ઝીણા બાપાએ કહ્યા કે સારું સમય આવે એટલે હું બતાવું તમને। પાછા 4-5 સાધુ ભેગા થયા, એમની પરીક્ષા કરવામાં આવી, ચલમ પીધી અને આ લોકો ચલમમાંથી કાંકરો કરી નાખ્યો। એટલે એમાંથી પછી ઝીણા બાપાએ નાનું રૂપ ધારણ કરીને ચલમમાંથી બહાર નીકળી ગયા। એટલે પછી માની ગયા કે ના ભાઈ તું હાવ ઝીણો છે। હા, સરસ માહિતી આપી ભગવાનશ્રીએ અને તમે અહીંયા જે જોઈ શકો છો કે આ જે ચલમ છે તેમાંથી ઝીણા બાવા નીકળ્યા હતા, પ્રસાર થયા હતા અને અહીંયા પ્રમાણ આપેલું આ જગ્યા ઉપર ઝીણા બાવાએ। જય ગિરનાર। જય ગિરનાર। ये जीना बाबा की मढ़ी एक ऐसी मढ़ी है, इसका सही समय तो मैं निर्धारित नहीं कर सकता। मैंने जो अपने अखाड़े के कुछ संत भगवान के श्री मुख से सुना है वही मैं आज आपको अवगत कराऊंगा। ये आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य जब के रूप में जब भोले बाबा प्रकट हुए, उस समय से इस धरती पर ऐसे अनेक ऋषि मुनियों का, जैसे कि हमारी पुष्पांजलि बताती है, गुरु दत्तात्रेय भगवान का ये तपो स्थल है। गोरगढ़ राज कर ये गुजरात धरती का, मैं शॉर्टकट में इतना ही कहूँगा तो विश्व के अंदर अगर माँ सरस्वती अगर कहीं वास करती है तो गुजरात राज्य है। ये हमने संतों के मुख से सुना, हमारे गुरुजनों ने भी ऐसे कहा। गुजरात की जो पवित्र धरती है, इसके 6 बार ऐसे इसको चाट लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये जीना बाबा की
जो मणि तपोस्थल, ये ऐसी सीनरी, यहाँ का हरितमा, यहाँ की बनावट प्राकृतिक, परमात्मा की स्वयं की बनाई हुई। आज मैं 1.5 शब्द में यही कहना चाहूंगा आपको कि जहाँ जाना कठिन हो वहीं परमात्मा रहता है। मैं इसके करोड़ों सबूत आपको दे सकता हूँ कि गिरनारी बाबा यही है, यही है, यही है, और कहीं क्यों नहीं है इसका कोई सबूत नहीं है। मैं आपको करोड़ों सबूत दूंगा कि गिरनारी यही है। क्यों है? क्योंकि जहां सब आने से डरते हो तो आज्ञा का पालन हो रहा है। जैसे भगवान भोलेनाथ की लीला रचाई हुई भृगु ऋषि महाराज जब अपने भजन की ऊर्जा को, अपनी तपस्या की ऊर्जा का जब माप लेने के लिए चले, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के घर में पहुंचे और अपने आदर की गुहार करने लगे कि मैं साधु हूं और मेरा आदर सत्कार नहीं। उनके गुरुजनों ने, परिजनों ने, सबने धमकाया कि हमारे घर में घुसकर हम ही को आदर कराना चाहते हो, ऐसे संत हो। तो जगा हुआ संत चाहिए। संत की पहचान है कि जगा हुआ, संतुष्ट। आपके पास कुछ न कुछ ऐसा आकर्षण होना चाहिए कि आपके पीछे कुछ लोग लगे। मेरा आज सभी मेले में आए हुए दर्शनार्थियों से एक ही आग्रह है, आप अरे समाज से न जुड़ सके तो कम से कम परिवार से जुड़े। अपने पति, पुत्र, अपने एक समाज का गठन तो कर सकते हैं। अपने परिवार का भी नहीं कर पा रहे, एकांत में बैठकर आप गिरनारी बाबा का नाम लेकर के अपने आप को संतुष्ट जिस दिन कर लेंगे, आप एक दिन देश को संतुष्ट कर लेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जीना बाबा की मणि का महत्व, जिस तरह से आंधी के आम और बाबा जी के दाम नहीं गिन सकता। मेरा गिन लीजिए आप, इसमें मेरे पास टाइम नहीं है। सभी पूछ रहे बाबा जी कितना हुआ, कितना हुआ, और मैं सबको यही कहता हूँ, आंधी के आम और बाबा जी के दाम गिने नहीं जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैं आपको भी यही कह रहा था, हम बाबा हैं, हम तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो बाबा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा झगड़ा होता है तो उन सब संत भगवान को मैं यही कहता हूँ, अगर हम संत हैं तो विश्व में मेरा कोई शत्रु नहीं। मैं अभी कार्ड दिखा देता हूँ आपको। मुझे सिक्योरिटी दी गई, मैंने कहा ये हम सिक्योरिटी, मैं स्वयं सिक्योरिटी हूँ, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी का अरे हम वो बाबा जी जब जल सेना, वायु सेना, थल सेना जब फेल हो गई तो ये नागा फौज तैयार हुआ, तब मुझे सिक्योरिटी का क्या करना है। गौरव रावत, रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस और क्या कहते हैं मानव अधिकार मीडिया मेरे स्वयं के आश्रम में आई। गुरुजी पालघर में ऐसा हो गया। मैंने कहा उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। मैंने अगर गलत किया उससे मन में घुटन होती है। अगर मैंने गलत किया मुझे तत्काल मेरे मन को शांति मिलेगी। कर्म दंड तो मिलना है, आज नहीं तो कल, उसका इंतजार क्यों करना है भाई। इसलिए साधु को अपने ऊपर कभी भी आवरण ओढ़ करके नहीं रखना चाहिए कि मुझे कोई पहचान न सके। इसीलिए हमारा ये नंगा होकर के बाजार का मतलब इसका एक रीजन ये भी है कि हमने अपनी काम शक्ति को जागरूक किया है कि नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए ये मोबाइल चल रहा है ना, तो गुरुजी ने बताया कि ये सब कुछ सुनने से प्राणी सरल होता है और कुछ सुनने से भयभीत होता है। तो ये एक परिचय है कि वास्तव में मेरे नागा बाबा ने अपनी इंद्रियों पर काबू किया है। आप झूठे कागज देख करके आपका मन गंदा होता है, शरीर गंदा होता है मेरे संत। तो हाँ, अगर वो कभी अगर ऐसा कामदेव अगर प्रकट हो भी जाते हैं तो उसमें भी एक सुझाव बताया है संतों ने। क्या? काम एक रस है, काम एक रस है, और उससे बड़ा कोई रस लेना है तो वो राम रस है। राम रस से मतलब नमक भी है। अगर थोड़ा सा उसमें नहीं डाला गया है ना नमक आपने, तो MDH मसाले डालो चाहे रामदेव मसाले डालो, सब फेल है। नमक नहीं तो कुछ है ना। तो
काम नहीं है, अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है, खाली तिलक लगा के घूमता है ना, ये तो कुछ करता ही नहीं, काम भी चाहिए, लेकिन उसकी मर्यादा है, उसका समय है। जैसे दिन के 4 पहरे होते, रात्रि के भी 4 पहरे होते, उसके हिसाब से करिए ना। ये किताबें भी नहीं पढ़ी मैंने, एक्सपीरियंस भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन सुन लेता हूँ थोड़ा सा। पहले इस पैर में कौन जाएगा, रोगी कोई बुढ़ी बूढ़ी आए ऐसी, अब उसको दवाई दुवाई देना है, उसको सुलाओ पहले, फिर वो भोग ही जाएगा। भोग 2 प्रकार का बताया थे गुरु जी, पेट भरने का भोग, जो अपना भगवान का भोग लगाओ, फिर अपना उस शरीर को ऊर्जा प्रकट करेगा, भगवान का वास है अन्न में वो। दूसरा भोग, तीसरे पैर में योगी, चौथे पैर में सब जग जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ नया करके दिखाओ, कुछ अच्छा बन के दिखाओ, ताकि मैं अगली साल आऊँ तो लगे कि हाँ बापू आपने जो बोला था उसमें 50% तो सत्य है ही है। नहीं, अगर हम साधक हैं तो 101% सत्य हो। बाबा अगर हैं तो मैं तो बार बार कहूँगा, मैं इतने प्रमाण के अलावा भी, मेरा फ़ोन बंद है, ये इतना पोथन्ना ये लेके ऐसे ही नहीं घूमता हूँ मैं मेरी कमजोरी पकड़ी जाए, मुझे आपका सबका विश्वास है, लेकिन अपना विश्वास नहीं है। भाई ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गलती नहीं है, तो फिर मेरे अंदर क्यों नहीं है कोई गलती? गलती है अवश्य। कभी किसी को मैं डांट भी देता हूँ गुस्से में, वहाँ आश्रम में हो जाता है। एक दिन मैंने वो हमारे वो फुलवाड़ी में गार्डन में घुस गई भैंस, मैंने ऐसे डंडा उठाया, सच बताऊं, वो भैंस चारा कौन से गिरी निकल चीख निकली आई। हमने बताई गुरुजी को बात, बोले मारना नहीं, तुम जो तपस्या करते हो उससे क्रोध उत्पन्न हुआ है, इसको क्रोध को शांत करने के लिए अब तुम जंगल में जाओ। ये मौका मिला मुझे, मैं पहली बार आया इस जंगल में, मैं फिर कहता हूँ पहली बार आया हूँ। भवनाथ तक आता था, लेकिन जीना बाबा की मड़ी का आज तक मैंने ऐसी सीनरी बनी नहीं देखी। मैं नेपाल में, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, मेरी पुष्पांजलि है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें कितने राज्य होते हैं, क्या क्या है। मैं आज तो आपको, मेरे को लग रहा है कि जब तुम सब कुछ दिखाई दूँ, जब आवरण तक बात आई गई है, तो ये देखो देखो कितना बड़ा मेरा साम्राज्य का मालिक हूँ मैं। इसको बंद कर दे, लक्ष्मी को ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। भोजन, भजन और नारी, ये तीनों पर्दन के अधिकारी। इनको पर्दे में रखना चाहिए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सिद्ध श्री लिखवंत श्री क्षेत्र महाकुंभ मेला हरिद्वार 2021 संवत 2078 श्री पंचनाम जूनागढ़ के समस्त सरदार श्री महंत निरंजन भारती, श्री महंत रामचंद्र गिरी महाराज, श्री महंत दूजपुरी महाराज, श्री महंत शांतानंद गिरी महाराज, अष्टकौशल महंत कमल भारती महाराज, अष्टकौशल महंत तीर्थगिरी महाराज, अष्टकौशल महंत सत्य चेतनपुरी महाराज, अष्टकौशल महंत योगानंद गिरी महाराज, कोठारी नारायण भारती महाराज, दिल्ली, मेघालय। ये क्या है महात्मा जी? मेघालय तथा सर्व संत। क्या है आपका? ये हमारा जमात, जो हमारे जो मेरी जो सेना है, अच्छा। उसके तहत हमको अनुमति देता है ये प्रशासन। मैं आपको बारंबार यही बताना चाहता था कि इसको यहाँ आना वर्जित है। जिस तरह से शिव को नंदी ने, जिस तरह से शिव ने नंदी को, अधूरी रह गई थी मेरी कहानी, मैं फिर बताना चाहूंगा, जिस तरह नंदी को गेट पर बैठा रखा था ना, वैसे मेरे यहाँ फॉरेस्ट वालों को बैठा रखा। बोल फॉरेस्ट वालों की, इनके माता पिता की भी जय। ये व्यवस्थापक है, इनकी मर्यादा का, इनकी आज्ञा का पालन मैंने किया और आपको भी करना चाहिए। बोल गुरुदेव दत्त महाराज की जय। बोल। मेरा नाम नागा बाबा हरिओम गिरी महाराज, मेरे श्री गुरु महाराज संत श्री महंत देवेंद्र गिरी महाराज, ब्रह्मलीन श्री महंत देवेंद्र गिरी महाराज 3 हैं, भूले कि मैं नहीं रहना। श्री महंत देवेंद्र गिरी महाराज एक गांधीधाम वाले, श्री महंत देवेंद्र गिरी महाराज एक कश्मीर वाले भी, और श्री महंत देवेंद्र गिरी महाराज ब्रह्मलीन एक काशी वाले भी है। त्रिशूल व्यवसायी काशी शिव कैलाशी, तेरा दिया सब खासी श्रीकंठ कैलाशी। तो मेरे गुरु जी काशी वाले हैं,
और ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो आज उन्हीं की मेरे को ये सब जिम्मेवारियाँ थोड़ा सा ये 52 तीर्थ की दी गई है। मैं गिरनारी बाबा से प्रार्थना करता हूँ, आप सबको भी आग्रह करता हूँ कि मेरे ये इसका जो है ना ये कागज़ पत्तर की जो कार्रवाई है वो आगे से जल्दी से जा करके और ये कुछ हो चमत्कार हो तो हमारे इस भेष पर आगे के लिए भी विश्वास किया करेंगे लोग। ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। मंदिर का विकास ही केवल, मैं बारंबार कह रहा हूँ कि मंदिर का विकास केवल मेरा धर्म कहानी में नहीं है, मेरे से आप सीखो कुछ। हमने जो आज तक बचपन का ये भेष धारण करके माँ बाप को चकमा दे करके किसी तरह से आ गए कि नहीं हम तो बाबा बनेंगे, और जब हम भिक्षा के लिए घर पर गए तो हमारे माता पिता रोते रह गए, कहने लगे अरे तुमको क्या दुखता जो हमें छोड़ के चले गए। तो मेरी माँ आके अंदर से पता है क्या बोली, अरे हमारी तो 21 पीढ़ियाँ तर गई, क्या बात करते हो तुम, मुझे कमजोर करना चाहते हो, मैं तो वो झांसी वाली रानी का बच्चा हूँ। बोल शंकर भगवान की जय हो, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की जय हो। तो मेरे गुरु महाराज, मैं आपको परिचय दे रहा था, मेरा नाम नागा बाबा हरिओम गिरी महाराज, मेरे श्री गुरु महाराज श्री महंत ब्रह्मलीन थानापति देवेंद्र गिरी महाराज काशी वाले, सिसैया बरेली उत्तर प्रदेश के वो मठा है, बड़ी वो प्रसाद है तेरे लिए। तो ये इसका क्या है इसका भी मैं बता देता हूँ। जो शंकर जी ने पार्वती के लिए वो सोने की लंका बनाई, तो रावण ने वही मांग ली, पार्वती को गुस्सा आ गया तो वो फेंक दिया था। तो वो उसका दाल और चावल और रोटी का वो पत्थर बन गया था। ये अभी लखपत गांव से आपसे भले ही कट्टा भर के भी ला सकते हैं, लेकिन वहाँ जाना कठिन है। कैलाश टेकरी, हनुमान टेकरी, एमपी बादल, ये मैंने अभी जो दर्शन नर्मदा परिक्रमा का नाम लिया था, ये उसी महामाई की कृपा है। इसको हिंगलाज दाना का भी बोलते हैं, हिंगलाज माता का दाना भी बोलते हैं, और इसको ठुमरा भी बोलते हैं। पुष्पांजलि में बोला गया, गोला ठुमरा श्री पूजा वितम, गोला ठुमरा पूजा वितम, श्री गुरुदेव दत्त की आरती में है, इसका विधान है। और दूसरा हिंगलाज माता का दाना भी बोला जाता है, इसको ठुमरा और ठुमरा बोलते हैं, और पार्वती का भात, ये 3 नाम से जाना जाता है। पार्वती भात, हिंगलाज माता का दाना और ठुमरा। तो इतनी महत्तम है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ। अगर कोई बहुत बड़ी से बड़ी अगर कोई साइंस है तो वो बाबा ही होगा, मैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा इतना दुर्लभ शरीर है, बेकार है मैं, और इतना लाद रहा हूँ। जिसके पास कुछ नहीं है वही पहुँच सकता है जिसको इतने माल की चिंता है वो नहीं पहुँच पाएगा, क्षमा करना मुझे। शंकर भगवान की जय हो, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की जय हो।